Good morning, students. Welcome to this UPSC lecture session. Today we are going to cover an article that appeared in Yojana magazine on textiles. The news and article is important for both prelims and mains. For prelims, the article provides historical examples that illustrate the universal appeal of textiles across time and geographies. These points and facts are directly relevant for the prelims, and it comes under various topics, right from ancient history to world history to India's colonial history to India's textile legacy. The article provides some of the keywords and phrases like figurine of lady from Mohenjo-daro, Cleopatra and Victorian era, etc., etc. These words are drawn from ancient history and in particular Indus Valley civilization topic. So you can cover Indus Valley civilization from static books, and remember, do enrich this article with 10-20 more such artifacts from Indus Valley civilization. By this you can cover your static portion and revise your static portion through daily current affair coverage. In the next paragraph, the article provides a keyword drawn from art and culture. The keywords like bandani, kantha, tanchoi, etc. Similar exercise as just mentioned above can be done for art and culture book also to cover the static portion of the same. So the article, what you have to remember is the article provides a good opportunity for revising the artifacts and Indus Valley civilization. And this is the way you will keep on covering everything, the static portion of your subjects through current affairs. For prelims, also do memorize a few GI tag or famous varieties and their states. Okay, now we move on to mains part. How the article provides relevant points for mains. The article is on textile and it has played part in forming our independence movement and how Britain exploited or destroyed our flourishing textile industry in 19th century to fulfill the demand of its own industrial revolution. Remember, it is a journey of India from dhoti to jeans. इसमें if we try to link to the current news, we can understand about our new textile policy 2000, which aims at placing India on the global map of textile industry. Further, similar to viral phrase, recently one web series came, Bats of Bollywood, उसमें था ना एक गफूर. Similarly, we have ATUFs. What is ATUFs? It is Amended Technology Upgradation Fund Scheme. The goal of the scheme is to achieve modernization in the textile sector. Memorize the name of the scheme for mains as well as prelims, क्योंकि इस बार करना है यूपीएससी पार. अभी तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी लिया होगा ना, तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या लेना है? नया साल है, नए ख्याल हैं, जीवन को देना है अर्थ, क्योंकि हम सब हैं समर्थ. समर्थ से याद रखेंगे समर्थ स्कीम. समर्थ स्कीम क्या है? इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्सटाइल एंड इट इज़ scheme for capacity building in textile sectors. Basically, it is for the skilled workers. Okay. ऐसे ही in textile sector, government has allowed 100% FDI in the automatic route. इससे इकोनॉमी का कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है? FDI and its various entry routes. पैसा तो चाहिए ना, ब्रिटेन से या ब्रिटिश से बदला लेना है. कैसे उनके इंडस्ट्रीज से पैसे लेंगे फॉर आवर टेक्सटाइल सेक्टर टू ग्रो एंड राइज एट ग्लोबल लेवल. दूसरा है नॉर्थ ईस्ट.
नॉर्थ ईस्ट विच वॉज अर्लियर आवर वीक एरिया, अब उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने का प्रायोरिटी है। एंड कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं? बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड प्रमोटिंग देम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेलेवेंट टू नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। तो रिमेंबर, जहाँ नॉर्थ ईस्ट मिले उसको बेसिक फैक्ट्स उसके याद कर लो। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट फॉर मेंस। मेंस के लिए ये पॉइंट्स रट लेंगे। क्या पॉइंट्स हैं? डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड और हैंडलूम सेक्टर, इसमें टेक्नोलॉजी लैग है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैंडलूम क्रिएट होता है, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी लैग करता है। क्रेडिट एक्सेस जो है, जो फाइनेंशियल बैकबोन होती है, वो हमारी वीक है, क्योंकि वहाँ से फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट एक्सेस नहीं है या कमज़ोर है। कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड वियतनाम, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर है। ऑल्दो इंडिया का भी चीप, बांग्लादेश का भी चीप लेबर है, बट वियतनाम एंड बांग्लादेश दे आर मोर चीपर। तो इंडिया फेसेस कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड वियतनाम। दूसरा, एनवायरमेंटल कंसर्न। क्या है एनवायरमेंटल कंसर्न? वाटर यूसेज, डाइंग पोल्यूशन। जो पोल्यूशन होता है, डाई करते हैं हम टेक्सटाइल को, एंड इट राइजेज द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अरावली बचाओ या कपड़े का फैक्ट्री लगाओ, ये क्राइसिस एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। ध्यान रखना, एज एन IAS ऑफिसर दोनों को बैलेंस करना है आपको। अगले साल से जब DM बन जाओगे तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस? पॉलिसी दोनों के लिए अवेलेबल है, बस इंटेंट ऑफ गवर्नेंस DM साहब में होगी तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो आज के लिए विचारणीय विषय क्या है? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? रोड्स के लिए जंगल काटना हो और जंगल में जानवर हो, सोचिए DM साहब। कूल। चलो, मूविंग ऑन टू होमवर्क फॉर टुडे। इस आर्टिकल से जो हमारे रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको एक जगह पुट ऑन कर लेंगे, या तो आप स्लाइड्स को ही कॉपी कर लीजिएगा। इट इज़ इनफ फॉर यू टू रिमेंबर दैट। फिर ग्लोबल फैक्टर्स हैं हमारे कुछ। ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं? फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, ट्रेड बैरियर्स हैं। ट्रेड, जैसे अभी US ने ट्रेड बैरियर क्रिएट किया तो इट इम्पैक्ट्स आवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इन पॉइंट्स को रट लेंगे तो आगे काम आएंगे। जो टॉपिक हम कवर करें या करंट अफेयर में कवर करते हैं, कोशिश करो उनको उस दिन रट के छोड़ दो। नेक्स्ट करंट अफेयर आएगा तो वी कैन ऑलवेज रिवाइज दैट। एक छोटा सा टास्क, जो लिखना चाहे लिख सकता है, जो सोचना चाहे सोच सकता है। बस मुद्दा ये है, टेक्सटाइल के आर्टिकल का लिंकेजेस विद आवर मेंस सब्जेक्ट। बोले तो अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं या पुराने एस्पिरेंट हैं तो द ओनली की टू फाइनल UPSC सिलेक्शन इज़ मेंस आंसर राइटिंग। तो उसको इग्नोर कभी भी नहीं करना। तो आज के लिए क्या है, जो पीछे क्वेश्चंस थे, ट्राई टू राइट एज मैनी वर्ड्स ऑन द अबव आंसर, अबव क्वेश्चन फ्रॉम द नॉलेज दैट यू हैव गेन फ्रॉम द प्रिपरेशन टिल नाउ। अभी तक जितनी तैयारी की है उसी से आप तैयार कर लेना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ना अपना स्पिरिचुअल बच्चा, स्पिरिचुअल गुरु, तो वो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि आपका राइटिंग लेवल क्या है। एवरी आंसर इज़ अप्रिशिएटिव एंड एवरी आंसर रिटन ऑन पेपर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स मेंस आंसर राइटिंग प्रिपरेशन। जस्ट ट्राई टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, एथिक्स जो पेपर 4 एंड ज्योग्राफिकल डायमेंशन फॉर एवरी आंसर दैट विल बी गिवन टू अस। शुरू में ऐसा लगता है कि वेस्ट है जो हम कर रहे हैं, बट विद टाइम यू विल रियलाइज दैट दीज लिंकेजेस ओनली क्रिएट दैट एम्पल स्पेस ऑफ टाइम इन द मेंस आंसर राइटिंग, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ डायमेंशन फ्रॉम योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसमें कैसे ध्यान रखेंगे? इसमें हिस्टोरिकल डायमेंशन कैसे आता है टेक्सटाइल में?
इसमें कॉटन एंड अदर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स इंडिकेट इंडियाज रिचनेस vis-a-vis industries, urbanization and research. Historically, India was very rich in terms of industries, urbanization. With Britain came exploitative nature for our industry, which finally vanished. इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन कैसे आता है फ्रॉम द वर्ड इंडस्ट्री. लास्ट लाइन में हम इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इकोनॉमिक उसको लिंक कर देंगे. So economic dimension says the GDP of India in medieval to modern times have been a contributing factor to world economy. Shashi Tharoor also says no. India's GDP was 23% of world economy at the time Britain entered India. Geographical dimension क्या है? How India was suitable for textiles and other industry. Its moderate weather gave chance to every corner of the nation to develop their own distinct industrial goods. It is this geographical condition that enabled Britain and other invaders to stay in India for long-term gains rather than for short-term barter exchange related profits. Ethics कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? हाँ, अब इसको आप एथिक्स के पेपर में भी यूज़ करेंगे टॉपिक्स को. वही वाला आ जाएगा कि डीएम साहब के पास ऐसे ऐसे एक इंडस्ट्री है, एक्सप्लॉयटेटिव है, डाइंग पोल्यूशन होता है, बट उसको लगाना है क्योंकि गवर्नमेंट टेक्सटाइल पे फोकस कर रही है, तो व्हाट इट विल डू. सो एथिक्स सेज द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी दैट वाज सेल्फ सर्विंग, टेम्परेरी एंड एक्सप्लॉयटेटिव. Ethics in governance was a need of that time and is need of our in today's time also. How schemes like CP Gram that brings accountability in governance is a welcome step. So इसमें ये हमारे अलग अलग डायमेंशंस हो गए. अब हमें कंक्लूड करने के लिए एक बड़ी बेसिक प्रैक्टिस करनी है which is what you get from our lectures. For example, we are working on textiles. So textile के related we will conclude this answer with the sentence that Khadi is the best solution for bringing our textile to define our economic growth at the world level. तो हमें खादी जो है, खादी सिर्फ एक एक्रोनिम यूज़ करना है और इसी में हम अपने जितने भी सॉल्यूशन है वी विल इनकॉर्पोरेट दैट. सो के से क्या हम बोलेंगे? किलिंग द कॉलोनियल माइंडसेट by bringing new scheme that support traditional as well as modern craftsmen. खादी में एच क्या है? Historical areas of textile market must be revived. ए क्या है? ए बड़ा कॉमन है. Always put accountability. Accountability of bureaucracy, accountability of businessmen, accountability of middlemen. खादी में फिर डी क्या है? Developing creative solutions. Every aspect in today's world and for today's problem is developing creative solution. तो इसको भी आप आंसर राइटिंग में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. खादी में आई क्या है? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स टू मैच ग्लोबल डिमांड. ये भी बड़ा कॉमन है इकोनॉमी में. टू मैच ग्लोबल डिमांड वी हैव टू अंडरस्टैंड and we have to meet the global industrial standards. So this is how we will link the various dimensions in our answer writing. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. Tomorrow we will cover another topic from current affairs. Till then, best of luck. See you tomorrow.